है नहीं। नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારે મીટિંગને બધાને સ્વાગત. અને આપણે કોરોનાના સમયમાં પસાર થઈ રહ્યા છે અને આપણે બધા ચર્ચાઓ ચાલુ પણ રાખ્યા છે અને પરિસ્થિતિ પણ બહુ વિષમ થઈ રહ્યા છે. એક પ્રકાર દિશાહીન સિચ્યુએશન, હેલ્પલેસ સિચ્યુએશન બધા પસાર થઈ રહ્યા છે. એ સંજોગોમાં હું એક બહુ સરસ કવિતા આજના પરિસ્થિતિને જે રિફ્લેક્ટ કરતા, જે પ્રતિબિંબિત કરી રહ્યા છે, એ કવિતા એને રજૂ કરવા માટે હું મીનાક્ષીબેન જોશીને આહ્વાન કરું છું, બોલાવું છું. એ કવિતા રજૂ કરે, થોડું કંઈક બોલે, પછી આપણે ચર્ચા શરૂ કરીશું. મીનાક્ષીબેન. સૌને નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન બહુ જ કપરા સમયમાં આપણે આપણી વાતને કહેવાની કોશિશ કર્યા કરીએ છીએ. સેક્યુલરિઝમની, લોકશાહીની અને કોવિડ મહામારીમાં એ બંને મૂલ્યો આપણે બધા માટે બહુ અગત્યના છે. એનો અહેસાસ આખો દેશ કરી રહ્યો છે અને એના અહેસાસમાં જ આપણા રાજ્યના જાણીતા કવયિત્રી પારુલબેન ખખ્ખરે કવિતા લખી છે, જે સોશિયલ મીડિયામાં બહુ જ લોકપ્રિય થઈ. એને ગીત રીતે પણ એનું ગીત પણ રજૂ થયું, એટલે કે એ સંગીત સાથે પણ એની રજૂઆત થઈ સોશિયલ મીડિયામાં. કોઈ પણ કારણોસર એ સંગીત સાથેની રજૂઆતને જે મીડિયમ પર હું વાત કરી રહી છું એ મીડિયમ પરથી હટાવી લેવામાં આવી છે, જે પણ કારણ હોય. પણ પારુલબેનની એ કવિતા આજે બહુ પ્રસ્તુત છે. અફસોસ સાથે હું કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાતી ભાષી, ગુજરાતી લોકો, જ્યાં મેઘાણી જેવા કવિએ પણ લખ્યું કે કવિ તને કેમ ગમે, અને હાય રે હાય, આકાશમાં જો પ્રભુ હોય એટલે પ્રભુહીન આકાશેથી આગ જરે, ત્યારે હાય રે હાય કવિતાને કૃષ્ણની બંસરીના ગીત કેમ ગમે, એવું આપણે ત્યાં લખાયું છે. કે અવિનાશભાઈએ એમ કહ્યું કે ભગવાન રામ તમે છો ને ભગવાન કહેવડાવો, પણ સીતાજીને તોલે ના આવો. ઉમાશંકરભાઈએ કટોકટી વખતે પણ કહ્યું કે તમે કહો છો વસંત છે અને પંખીને મોઢે તાળા. તો આ જે કવિ ન્યાયની જે પ્રક્રિયા ગુજરાતી ભાષા જેનું સાક્ષી બનેલી છે, અને ગુજરાતી સભ્યતા જે સત્યના અવાજ સાથે જોડાયેલી છે, આ એ રાજ્ય છે જ્યાં સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, એવું જ્યારે ગાંધીજીએ જાહેર કરેલું છે આઝાદી ચળવળ વેળાએ, ત્યારે પારુલબેનની કવિતા વિશે સોશિયલ મીડિયામાં ઘણી ટીકા ટિપ્પણી થઈ રહી છે, ઘણી અભદ્ર ટિપ્પણી થઈ રહી છે, જેને હું ખૂબ દુઃખ સાથે, ખૂબ ખેદ સાથે વખોડી કાઢું છું. અને પારુલબેને જે કવિતા કહી છે આજની પરિસ્થિતિમાં, એ કવિતાને સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન અને સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના કન્વીનર એવા પ્રકાશભાઈ, આપણી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ, એમના તરફથી પણ, જો કે હું એમની સાથે વાત નથી કરી શકી, પણ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો પણ એ જ મિજાજ હોય કે કવિતા જે પારુલબેને કહી આ સમયમાં, એને આપણે સૌ બિરદાવીએ છીએ અને ટેકો આપીએ છીએ. ભલે સોશિયલ મીડિયામાં હા સ્વરાંકન થયું છે, કિશોરભાઈ વાત સાચી છે, અને કિશોરભાઈ એ વાત પણ સાચી છે કે પારુલબેનની કવિતાનો અંગ્રેજી, હિન્દી અને મરાઠીમાં અનુવાદ પણ થયો. સારું થયું, આપણે યાદ દેવડાવ્યું એ માટે ફેસબુકમાં. એ કવિતા હું એટલા માટે પઠન કરવા માંગુ છું કે આપણા સમયની વેદના, આપણા સમયની લોકોની વેદના, સાધારણ લોકોની વેદના અને એક રાજકીય પરિસ્થિતિ જે છે એનો ચિતાર એ કવિતામાં અપાયો છે. એટલે હું એને વિશે વાત કરવા માંગુ છું. અને એ કવિતાને રજૂ કરીને જ આપણે એ કવિતાને ટેકો આપીએ છીએ. બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. એક અવાજે મળદા બોલ્યા, સબ કુછ ચંગા ચંગા, રાજ તમારા રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા, રાજ તમારા મસાણ ખૂટ્યા ખૂટ્યા લક્કડ ભારા,
રાજ અમારા ડાગુ ખૂટ્યા, ખૂટ્યા રોવણ હારા. ઘરે ઘરે જઈ જમડા ટોળી કરતી નાચ કડંગા. રાજ તમારા રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા. રાજ તમારી ધક ધક ધૂણતી ચીમની પોરો માંગે. રાજ તમારી ધક ધક ધૂણતી ચીમની પોરો માંગે. રાજ અમારી ચૂડલી ફૂટે, ધડ ધડ છાતી ભાંગે. બળતું જોઈ ફિડલ વગાડે, વહરે બિલ્લા રંગા. રાજ તમારા રાજ્યમાં રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા. રાજ તમારા રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા. રાજ તમારા દિવ્ય વસ્ત્ર ને દિવ્ય તમારી જ્યોતિ. રાજ તમોને અસલી રૂપે આખી નગરી જ્યોતિ. રાજ તમારા દિવ્ય વસ્ત્ર ને દિવ્ય તમારી જ્યોતિ. રાજ તમોને અસલી રૂપે આખી નગરી જ્યોતિ. હોય મરદ તે આવી બોલો, હોય મરદ તે આવી બોલો. રાજા મેરા નંગા. રાજ તમારા રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા. એક અવાજે મળદા બોલ્યા, સબ કુછ ચંગા ચંગા. એક અવાજે મળદા બોલ્યા, સબ કુછ ચંગા ચંગા. રાજ તમારા રામ રાજ્યમાં શબવાહિની ગંગા. પારુલબેને આપણા બધાની વેદના અને આ રાજકીય પરિસ્થિતિ જે ઊભી થઈ છે, કોવિડ મહામારી દુનિયા માટે આ બહુ એક 100 વર્ષ પછી આવેલી નવી આપત્તિ, એમાં આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ્યા છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક ખામીઓ રહી છે. ખાસ કરીને શાસક પક્ષ તરફથી, એટલે કે શાસક વર્ગ તરફથી દુનિયાભરના શાસક વર્ગે એને અવગણી, એની તરફ આંખ મીચામણા કર્યા અને સાધારણ લોકોને આ મહામારીમાં મોતને હવાલે કર્યા. એની સામેનો આક્રોશ અને એનો જે કવિન્યાય છે એ કહેવાની પારુલબેને જે હિંમત બતાવી, એની સાથે આપણે પણ આ હિંમત સાથે હું અહીંયા મારી વાત પૂરી કરું છું. હું દ્વારિકાનાથજીને વિનંતી કરું છું, સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની આજની આ ગુરુવારી મીટિંગને આગળ ધપાવે. ધન્યવાદ. શબવાહિની ગંગા. ખરેખર જ્યારે સમાજમાં એવા કપરા સ્થિતિ ઉભા થાય એ વખતે સાહિત્યની જરૂરત હોય. સાહિત્ય અભિવ્યક્તિથી બધું મનુષ્ય જરા દ્રઢીભૂત ના થઈ જાય. શાસક જ્યારે રડી ના શકે, જે શાસક રડી ના શકે, हाँ हिंदी में कहवानी બધું बात आई है. जिस देश में राजा रो नहीं सकता, जिस देश में प्रधान की आंखों में आंसू नहीं आते, जिन दुख में दिल भर नहीं जाता है, ऐसा परिस्थिति में वहां कैसी हाल होगी. तो कोरोना तो आज हमको तो हिला दिया है और भी हिलाने वाला भी है. कोई अच्छा समाचार तो सवेरे से मिलता नहीं है. इतना ही समाचार मिलता है कि यूपी से फिर डेड बॉडी, इतना डेड बॉडी बिहार पहुंच गया. और यूपी और बिहार के प्रमुख जो हैं वो बोलते ये आप जिम्मेदार हैं, कोई बोलता आप जिम्मेदार हैं. ये डेड बॉडी को लेकर जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार हैं. माइग्रेंट वर्कर्स का भी आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं. कोई जिम्मेदार बाकी तो कोई है नहीं. तो गंगा में डेड बॉडी को बहा देना शायद ये हमारा परंपरा में है. ये परंपरा शायद कुंभ मेला से भी उजागर हुआ. गंगा में अगर अपना मृतदेह अगर हम बहा देते हैं तो पूरा स्वर्ग प्राप्ति होता है. आज के जमाने में विज्ञान तो हट गया है. विज्ञान कल तकनीकी है. ऐसा कुछ दवा दे दीजिए मैं बच जाऊंगा, जी जाऊंगा, मरूंगा नहीं. शायद कुछ लोगों के पास ऐसा दवा भी हो सकता है जो मरते नहीं है, जिंदा है, वो हो सकता है. लेकिन संजीवनी कुछ लोगों के पास हो सकता है. लेकिन विचार में अवैज्ञानिक चिंता, सुपरस्टिशंस, इसको इतना डाल दिया गया है कि कोरोना के समय में भी विज्ञान की बातें आगे जाता नहीं है.
कुंभ के टाइम पे जो बोला गया कि गंगा में स्नान करने से कोरोना नहीं होगा, हमारे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर बताए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साक्षात भगवान हैं, जिन्होंने कुंभ मेला के बारे में कुछ टिप्पणी किया था उनको अपनी पद से हटा दिया गया। गंगा जल में ऐसा तत्व है जिस तत्व में आप पान करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। जात जात का इस तरह से सुपरस्टिशंस फैला करके कोरोना का समस्या समाधान नहीं हुआ। डेड बॉडीज, हमारे बात कहने के लिए जो मैं लास्ट टाइम ही बोला था कि जो प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले जो डावोस में बोले थे कि हमने पूरा कोरोना को 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ था और 21 दिन का युद्ध में उन्होंने कोरोना को भगा दिया। ये दावा किया था सारा दुनिया में, दुनिया वालों ने उनके फेस में कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी जो हो रहा है तांडव, जो कोरोना का तांडव चल रहा है और सारा दुनिया में जाके 44 देश को भी आक्रांत कर चुका है, ऐसे WHO बोल रहा है? तो इसे बोल रहे हैं तो इंडियन स्ट्रेन नहीं बोलना है, इसको स्ट्रेन नहीं बोलना है, इसके एक टेक्निकल नाम में भी WHO बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में ये आगे गया हुआ है। तो इसको लेकर जो प्रकार का एक खेल चल रहा है, इस खेल में लोग ही तो हैरान हो रहे हैं, लोग ही परेशान हो रहे हैं, राज्य राज्य, देश विदेश, और लोग भोग बन रहे हैं। मैं जब बात आपके साथ कर रहा हूं, जो कविता आपने सुना, शव, हमारे देश में कोरोना के समय पर शव, और भी पैलेस्टाइन इजराइल के संघर्ष में भी सब डेड बॉडीज। अभी क्या सुन रहे हैं हम? डेड बॉडीज। कम्युनल राइट्स के टाइम पे डेड बॉडीज, भूकंप में डेड बॉडीज, साइक्लोन में डेड बॉडीज। ये तो आपदा है, कोरोना तो आपदा नहीं है, इसको तो रोका जा सकता है। WHO भी बोल रहा है। जिस तरह से इंडिया ने पहले ये बात को थोड़ा ढीला पकड़ लिया, ढीला कर लिया, 21 दिन में हमने कोरोना को फाइट कर लिया, बोल दिया। उसके बाद फौसी जो है, अमेरिका का जो बड़े आदमी है, वो बोल रहे हैं कि आपने इसको जिस तरह से खोल दिया, आपने ओपन अप कर दिया, इसके कारण ये हो रहा है। किसी का एडवाइस तो लेना नहीं है, साइंटिस्ट का एडवाइस भी लेना नहीं है, आजू बाजू में जो हमारे पंडित लोग होंगे उन्हीं का एडवाइस लेना है, एस्ट्रोलॉजर का होगा उससे एडवाइस लेना है। अभी लेकिन क्या है कि घटना, इलेक्शन खत्म हो गया। इलेक्शन का लास्ट टाइम भी बात हुआ था, इस टाइम पे जो इलेक्शन किए उसके सामने मतलब हाईकोर्ट ने लाल आंख दिखाया। इलेक्शन कमीशन को जेल में डालने की बात भी की, उसको उन्होंने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहना मना कर दिया। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी लोग इशू को लेकर बोल रहे हैं। लास्ट टाइम फर्स्ट वेव के टाइम पे बोल नहीं पाते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल चुप थे या ऐसा कुछ बोलते जो लोगों की मदद में नहीं आता था। लेकिन सेकेंड वेव इतना बेकरार हो चुका है कि अभी उनको बोलना पड़ता है, जो सरकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ बोलने के बाद सरकार, तंत्र जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये एक्सपोज होने के कारण तो उन्होंने एक लाल आंख कोर्ट के सामने बताया, ये आपका पेरिफेरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव को, सरकार को अपना काम करने दीजिए। योर मैजेस्टीज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप अपनी लिमिट में रहिए। इस तरह का धमकी जो है, ये जो इस प्रकार का तकरार जो है, जो कंट्राडिक्शन जो है, ये पहले भी हो चुका है। जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी जब लोगों का मदद करने में आया, लोगों के लिए आया, आज वही के वही बुलंद और ज्यादा कड़क आवाज में बोलने का और कड़क से लिखकर हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ये बोलकर उनको पेश करने का, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बात को मांगते हैं, जवाब भी माने मांगते हैं कि आंसर मांगते हैं, तो ऐसे बात होती है। ऐसे ही जो भी सोशल नेटवर्क में, पेपर में, न्यूज़पेपर में जो खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की भी धमकी भी बार बार मिलती जाती है। आपको पता होगा ट्विटर, फेसबुक से कितने सारे ट्विटर को हटा दिया गया, वो बात को पता होगा। और अभी जो वेस्टर्न प्रेस, आज इंडियन प्रेस की बात तो जो लोग कर रहे हैं, आज काफी जो पत्रकार हमारे पास न्यूज भी आता है,
थैंक्स टू द पत्रकार। वो जो पत्रकार जर्नलिस्ट हैं उनके अगर वो नहीं होते, वो साहस के साथ अगर नहीं जाते, तो ये हमको ये न्यूज नहीं मिलता। इवन जो बिहार यूपी के जो डेड बॉडी जो गंगा में जो बहकर आ गया, अगर वो भी हमको हमारे पास में नहीं है तो हमको पता भी नहीं होता। उनको हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन ऐसे न्यूज भी नहीं आना चाहिए जिसमें लोग का कंसाइन जाग उठे, लोग क्वेश्चंस करे व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। उनको ऊपर भी एक प्रकार लाल आंख दिखाने की कोशिश हो रही है। जब सारा दुनिया का वेस्टर्न मीडिया, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे बहुत सारे पेपर जिनके आधार पर मोदी जी ने अपना छवि बनाने की कोशिश की, आज वो क्रिटिकल हैं, तो आज उनके सामने बात भी आ रही है। लेकिन किसी तरह गार्डियन में छपा कि मोदी जी कैसे 24 घंटा कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अभी कल या परसों आया ये, जब ये पूरा वेस्टर्न प्रेस में जैसे उनके बारे में काफी हैंडलिंग ऑफ द कोरोना क्राइसिस को जिस तरह से टीका टिप्पणी हुआ, सब लोगों ने बार बार बताया। इवन मैगजीन, टाइम्स मैगजीन्स, CNN, BBC, सब ने, वेस्टर्न मीडिया ने बताया। तब ये आर्टिकल आया कि ये जो है कि मोदी जी दिन रात सवेरे से रात तक कितना मेहनत करते हैं, इसका चिट्ठा आया। लेकिन उसमें फर्क कुछ पड़ा क्या? इधर इन डिफरेंस। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों के सामने अगर माफी तो मांग लो, तो मैंने जो सोचा था, गलत सोचा था, मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दो, देशवासी मुझे माफ कर दो, मैंने गुनाह किया है। माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता है। 2002 के राइट के टाइम पे भी जो घटना हुई थी, एक रिमोर्स फैक्टर दिखना नहीं था भारत में। उस वक्त का जो रिमोर्स फैक्टर कलिंग युद्ध में था, ये रिमोर्स फैक्टर ये नहीं दिखा था 2002 गुजरात का जो कार्नेज हुआ था। आज भी वो रिमोर्स फैक्टर सारा दुनिया, भारत में जब लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे हैं, सब आशाहीन हो गए हैं, ये ऐसा कोई रिमोर्स फैक्टर भी किसी को भी दिखता नहीं। लेकिन अपना पॉलिटिकल एजेंडा, अपना संगठन की स्वार्थ, अपना पार्टी की स्वार्थ, इलेक्शन की स्वार्थ, यही ही उनको सबको ऑल द टाइम दिख रहा है। अगर कोई क्रिटिसाइज किया, लगता है कि मुझे क्रिटिसाइज किया, उसको नोट किया जाता है। ये जो बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए बोला ये सब जो है, जो सबकी बारे बात जो हो रही है, तो ये जो डेड बॉडी के ऊपर में कोई ममता नहीं है। वैक्सीनेशन ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, जब होगा, कोई इसका माहिती में कोई ठिकाना नहीं है। हमारा दुनिया में ऑल द टाइम ये होता है कि वो सिटी सेंट्रिक होता है, टाउन सेंट्रिक होता है। ये दुनिया में क्या बात है, गांव को कौन पूछता है? गांव के लोग को ऐसे भी कोई पूछता नहीं। अभी गांव में चला गया कोरोना, लोग गांव की तरफ भाग गए थे कि वहां लोग, वो जंजाल नहीं है, वहां भीड़ भाड़ नहीं है, वहां बच जाएंगे। अभी गांव में कोरोना फैल गया है। जो लोग शहर में मर रहे हैं, भी डेड बॉडी को दफनाने के लिए अपनी पैतृक जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां फैल रहा है। गांव में बेड कहां है? गांव में अस्पताल कहां है? गांव में ऑक्सीजन कहां है? कुछ भी नहीं है। गांव में गया तो मरना ही है, पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि में मरना ही है। तो ये गांव में आज जो कोरोना फैल रहा है, आप इसको कैसे इसको 10% की इसको या इन्फेक्शन ऑफिशियल इसका ये डाटा है पॉजिटिव का केस का, कैसे करेंगे? कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नौकरी में किसी रिक्रूटमेंट नहीं। जो नौकरी में काम करते उनको तनख्वाह देने की बात भी नहीं। वो बार बार तनख्वाह के लिए वो मूवमेंट पर आ रहे हैं। आप लोग गाड़ी मोटर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आप लोग फॉरेन G7 कंट्री मीटिंग के लिए आप कोरोना होने के बाद भी आप जा रहे हैं। आप क्रिकेट खेलने के लिए उतावला कर रहे हैं, उनके लिए पैसा करोड़ों रुपया है, लेकिन हेल्थ वर्कर का पगार बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। या आप जो वैकेंट पोस्ट है, मेडिकल डॉक्टर का, नर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, फार्मासिस्ट का, इनको भरने के लिए आपको नहीं है। जो टीचर लोग हैं वो उनको आप दौड़ा रहे हैं, यहां वहां दौड़ा रहे हैं, लेकिन उनका भी पगार का ठिकाना नहीं है। जो वैकेंट पोस्ट टीचर का भी है वो भी भर नहीं रहे। तो आप तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट बारे में, पगार बढ़ाने के बारे में यू आर एट ऑल कंप्लीट इंडिफरेंट है। आप उन्हें खाली सर्कुलर देके और शिक्षा खराब करने नाम पे उनसे आप दवा दे रहे हैं, काम से निकाल देंगे, पगार नहीं देंगे, स्टाइपेंड नहीं देंगे, वो धमकी दे रहे हैं। और कुछ लोग धमकी से डर भी नहीं, काम भी कर रहे हैं। ये क्या है? ये सारे दुनिया भारत के लोग एक प्रकार का एक क्या बोलते हैं इसको, एक संवेदना के साथ एक होकर के हम जो भी है, जो भी मत हमारा मत भी रखते हैं, जो भी है सब मिलकर क्या हम एक कोरोना को फाइट नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम अपना पैसा रखेंगे घर में, हमारे करोड़पति हम पैसा रखेंगे। और सामने बताया कितना पैसा हमारे देश में है, अदानी अंबानी के पास में। वो अगर अपना पैसा 50% भी दे दे,
कितना लोगों को उद्धार हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने रिपोर्ट बताया हमको। तो ये नहीं, उनकी तो किसी तरह टैक्स का नहीं देना है, उसी के लिए चार्टर अकाउंटेंट वगैरह है, वो आपको मैनेज कर देंगे। और ये जो एक टैक्स कंसल्टेंट वगैरह है, वो आप पैसा नहीं देना है गवर्नमेंट को, वो आपको चलेगा। तो ऐसी जो परिस्थिति के अंदर में जो परिस्थिति खड़ी हुई है, तो हम क्या माने, ये जो परिस्थिति खड़ी हुई है, ये परिस्थिति को सामने करने के लिए एक तो अभी लोग बार बार सोच रहे हैं, लेकिन कोई रिसेप्टिव पोजीशंस नहीं है। लोग तो शायद कुछ मदद भी करना चाहते हैं, फिजिकली मदद भी करना चाहते हैं, कैसे मदद करें वो पता ही नहीं चलता है। क्या कौन मदद करेगा, वो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग खाली सोशल नेटवर्क, ट्विटर और ये फेसबुक और ऐसा कुछ टेलीफोन में बात करना, ये सब करके अपना मुराद पूरा करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और कुछ बात करें तो डर सरकार का क्रिटिसिज्म हो जाएगा, डर के बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन अभी हमको एक अपील है, सारे नागरिक, सारे सरकार, ओपोजिशन पार्टी, सारे संगठन, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, सब मिलकर क्या हम कोरोना का फाइट नहीं कर सकते हैं? क्या अपनी सेक्ट से निकल नहीं सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो रहा है। एवरीबॉडी अवेयर ऑफ द सेक्ट, of everybody aware of the organization, everybody aware of the government position, ये सब हो रहा है। और किसी दायरे में नहीं जाना है। एग्जीक्यूटिव कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तुम चुप रहो, तुम बोल नहीं सकते हो, यही सब चल रहा है। लेकिन लोग जहां हैं वही है, प्रॉब्लम वही के वही है। कितना परसेंटेज ऑक्सीजन मिल गया, कितना नहीं मिल गया, ग्राफ आज घट गया, आज ग्राफ ये हो गया। तो लेकिन डेढ़ की समाचार तो बढ़ ही रहा है, डेढ़ तो डेढ़ ही हो रहा है, कोई डेढ़ खत्म नहीं हो रहा है। मुझे खाली काउंट नहीं करना, नहीं मुझे काउंट नहीं करना है। खाली ये भी हमारे काउंट करने से अच्छा है, चलो कुछ पॉपुलेशन, कुछ लोग बोलेंगे चलो अच्छा हुआ, कुछ हमारे देश में लोगों का पॉपुलेशन कम हो गया, अच्छा हुआ, चलो जो जाने का था अच्छा हो गया। लेकिन डेड बॉडी के प्रति, जो आदमी के प्रति जो प्रेम श्रद्धा होती है, वो डेड बॉडी के प्रति दफनाना, तो बड़ी दी डेड जो बात होता है, एक सम्मान को दफनाना, आज वो भी नसीब नहीं होता है। आदमी अपने जीवन बारे क्या नहीं सोचता है। लेकिन आज स्मशान में जब जाता है, स्मशान के साथ में दो आदमी भी साथ में नहीं होते, 8 घंटा 10 घंटा खड़ा होना पड़ता है। इलेक्ट्रिक चूल्हा चालू नहीं होता है, खत्म हो गया, ये वो बिल्कुल बर्बाद हो गया होता है, लकड़ा नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी एक देश की परिस्थिति है। क्या बहुत अच्छा लगता है? हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कितना ऊपर गया, हमारा कितना देश आगे गया, हमने मिलिट्री, हम कितना किसको पछाड़ दिए, ये क्या अच्छा लगता है? यही सब जो सोचकर लगता है कि क्या परिस्थिति हमारे देश में हो गई है। इसी समय पर भी बड़ा अजीब बात लगता है कि हमारे कुछ लोग हैं कि बड़ा बड़ा अजीब सरकार का एक महाराष्ट्र सरकार एक थोड़ा लगता है कुछ अलग प्रकार का काम करेगा, लेकिन सरकार तो सरकारी होते हैं। हमारे अजीत पवार भी हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 6 करोड़ रुपया सोशल मीडिया में खर्चा करने के लिए पैसा अलॉट किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कोरोना के पीरियड में 6 करोड़ रुपया आप अलॉटमेंट करते हो फॉर सोशल मीडिया खर्चा करने के लिए। ऐसी जो चीजें होती है, लोगों को लगता है कि क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? आप क्या हमारे जीवन के प्रति आप मजाक कर रहे हो? आप अपनी कुछ संगठन जो है, अपना जो संगठन जो है कि जो सरकार ने अभी जो सबसे क्या मांगते हैं, जो सहायता मांगी, बहुत सारे डोनेशन आए, वो आपको पता नहीं चलेगा शायद। लेकिन वो डोनेशन जो लोग के पास जाना चाहिए, सरकार उस डोनेशन को अपने पास रखा, या अपने वाले जो संगठन उनको काम में आते हैं, या उनका अपना संगठन है, उनको ही पैसा अलर्ट किया। ऐसे ही पेपर में आता है, मैं आपको इसका पास में मैंने वो आपको मैं ये करता हूं, या वो पैसा को डाइवर्ट कर दिया गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्ट कर दिया गया। और बड़ी ये जो ट्विटर और फेसबुक, जो ये बड़ा इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी वगैरह फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि तेलिया मुंड में तेलिया राजा होता है, इसके मान में तेल देने की जब बात होती है, तो ये ट्विटर का जो है कितना $1 बिलियन उन्होंने सेवा इंटरनेशनल जो है, जो आरएसएस का जो है वो विदेश में काम करता है, उसको दिया ट्विटर में। पता नहीं कि कैसे ये लोग भी, ये जो इंडिपेंडेंट को कोई बाकी संगठन दिखता नहीं है। मैं तो सेवा इंटरनेशनल जो पढ़ा, मैंने लगा क्या हमारा अहमदाबाद में सेवा जो है, इलावेल भट्ट वाली जो सेवा है उसको दिया, तो अच्छा हुआ, चलो इसमें कुछ काम होगा। सेवा इंटरनेशनल जो है
अमेरिका में जो है आरएसएस का संगठन, उसको उसने दिया था, भी उसी से वो पैसा ये होगा। देखिए, और एक अच्छी बात भी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात भी जो है कि उन्होंने जो कोरोना वायरस से मरे हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया कंपेंसेशन दो, वो डिमांड कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी में एक जगह योगी आदित्यनाथ भी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है। उन्होंने काफी मांगने की कोशिश भी की, काफी उन्होंने माने बोले कि सरकार को बोला आप क्या कर रहे हो, सवाल किया। आज वो भी बोले जो भी कोरोना में मरा हुआ है 1 करोड़ रुपया दो। लेकिन बात क्या है कि कोरोना में मरा है वो प्रूफ कहां? आप तो बोले डायबिटीज में मर गए, आप बोलेंगे आपका अस्थमा में मर गए, अब अंदर में कैंसर था, तो अब वो कभी नहीं मिलेगा वो कोरोना में मरे हुए हैं। दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये सच्ची बात कभी इंसान में नहीं आएगा। इस बीच में सारे चीज को देखते हुए, जबकि हाउस बुला नहीं जा रहा है, पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला जा रहा है, शादी के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रोसेशन चलते रहता है, लेकिन पार्लियामेंट हाउस बुलाना या अपोजिशन पार्टी के साथ बैठकर बात करना वो तो होता नहीं है। जबकि सारे हाउस शुड सीट एंड डिस्कस अबाउट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, जब नहीं हो रहा है तो ये हमारा देश में जो अपोजिशन पार्टी है 9 पॉइंट प्रोग्राम, उन्होंने 9 पॉइंट डिमांड करते प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी दिया है। पता नहीं वो अमल होगा नहीं होगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, या उल्टा ही उसको सामने प्रहार करके बात करेंगे। उनको मौका मिल जाएगा कि मैं जब काम करता हूं अपोजिशन मुझे काम को रोकने की कोशिश करते हैं, टोकने की कोशिश करते हैं, एक डिबेट खड़ा हो जाएगा जो हम बार बार देख के आते रहते हैं। ये जो प्रकार का जो एक इनह्यूमन एटमोस्फेयर, ह्यूमैनिटेरियन एटमोस्फेयर जो है वो दिख नहीं रहा है। दैट इज द पॉइंट। दुनिया में पागलपन तो हर जगह में दिख रहा है। ये ओलंपिक गेम्स टोक्यो में 60% जापान के लोगों ने वोट दिया नो ओलंपिक गेम इन टोक्यो। उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन ओलंपिक हम जो है अभी स्पोर्ट्समैन कंट्रोल नहीं करते हैं, वो करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेस, एडवर्टाइजिंग कंपनी, जूता कंपनी, जर्सी कंपनी, ये सब कंपनी ये कंट्रोल करते हैं। ये अगर नहीं होगा तो ये उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जैसे आईपीएल का पैसा बर्बाद हो जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर हाथ में आ गया है, वो चाहते हैं गेम दे सो मच गो ऑन, नाटक जैसा शो ऑफ क्रिकेट, शो ऑफ ओलंपिक चलना चाहिए। जबकि आज ओलंपिक गेम के लोग भी, मैंने जापान के लोग भी 60% लोगों ने सर्वे में इसको दिया नो ओलंपिक, लेकिन उनको बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ओलंपिक के आगे जाने की कोशिश करते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स स्टार भी होते हैं। अच्छा होता है कि हमारे जो स्पोर्टिंग पर्सन अगर बोलते कि नहीं, पहले लोग की जीवन, पहले समाज में स्वस्थ जीवन, तभी स्पोर्ट्स गेम्स कब हो सकता है? जब आदमी जिंदा है, जब ऑप्टिमिज्म जब है, तभी हो सकता है। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1938 में बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्लिन में ओलंपिक गेम हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ स्कूल कॉलेज तभी खुला, जब बर्लिन वॉर जब वॉर खत्म हुआ तभी फिर ओलंपिक गेम और गेम चालू हुआ। ये हम दुनिया में हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन अभी कैसा हो गया? नहीं, गेम मस्ट गो ऑन, ओलंपिक मस्ट गो ऑन, क्योंकि आज सारे दुनिया में जो खिलाड़ी जो है वो है कैपिटलिस्ट क्लास, वो मल्टीनेशनल, वो कॉर्पोरेट हाउसेस, वो आज हाथ में है। उनके हाथ में ये प्लेयर भी कठपुतली जैसे हो गए हैं, और प्लेयर की कॉन्साइंस भी अपने रिंग में, ट्रैक में या स्पोर्ट्स कर्मी में वहां दिखता है, वह कॉन्साइंस नहीं दिखता है। और एक बात है कि मिस इंफॉर्मेशन, ऐसी स्थिति में डेड अनकाउंटेड जो मर रहे हैं उनका काउंट नहीं हो रहा है अभी। आश्रय ये सब गाय होता है, बटाटा, ये आलू और प्याज की गिनती होती है। ऐसे कितना हुआ गान, कितना काउंट हुआ, इतना कर दो, और कितना काउंट हुआ, होल नंबर कर दो, ना होल नंबर करने डाउट हो जाएगा, 9998 कर दो। तो ये जो प्रकार का मैनिपुलेशन ऑफ नंबर और मिस इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है, तो ये मिस इंफॉर्मेशन का जो बात है कि ये मिस इंफॉर्मेशन के कारण बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी खड़ा हो रहा है। तो मित्रों, ये जो बात है जो हुआ, ये सब कि आज ये कोरोना के लेकर तो हर रोज कुछ ना कुछ होता है और दर्दनाक बात होती रहती है। और हमारे एमएसडी में भी काफी लोग भी सफर हुए। हमारे खुद के हमारे कन्वीनर, हमारे जो एमएसडी के जो कन्वीनर हमारे प्रकाश भाई शाह, वो खुद ही वो कोरोना ग्रस्त हो गए, वो परिवार के साथ हो गए, अभी स्वस्थ हो गए। मैं तो बोलता नहीं था, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो बोलता था तो इतना फोन उनके पास जाते वो हैरान हो जाते, तो मैं छुपा कर रखा था। कल बोलता था कि कोरोना में काफी जा रहे हैं। हमारे एमएसडी के अच्छे कार्यकर जो थे रसिक भाई शाह, अभी 2 दिन कल ही गुजर गए। हमारे कुछ दिन पहले एक महिला कार्यकर जो थे उषाबेन
वाघेला, वो भी गुजर गए। हमारे जान पहचान के कुछ प्रोफेसर भी जो है अच्छा निस्बत धरावते नागरिक हिसाब से आते हैं, धीरू भाई, वो भी चले गए। ऐसे काफी लोग जो है हमारे आजू बाजू, दो सर्कल जाने माने जो हमारे साथ में एक रूट के हिसाब से, सपोर्टिंग के हिसाब से खड़े हुए थे, आज हमारे बच्चे में नहीं है। तो आज कोरोना में काफी लोग भी जूझते होंगे, हम लोगों ने भी, काफी लोग भी एक प्रकार अकेले पड़ गए हैं। उसी अकेले के बीच में भी हम इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहते हैं, ताकि ये एहसास हो कि हम हैं, हम रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे तो और कोई ना कोई रहेगा। एमएसडी का चर्चा चालू रहेगा, डिस्कशन चालू रहेगा। मैं एक दूसरी चर्चा पे करंट की सिचुएशन जो है, ये डेड बॉडी की जब बात आती है तो मैं आग जब बंद करता हूं, मुझे गंगा की डेड बॉडी दिखती है, मुझे स्मशान की डेड बॉडी दिखती है, स्मशान की चीताएं दिखती है, मुझे सो चीता जल रही दिख रही है, वो लोग वो कबर खोद रहे दिख रहा, लोगों कबर में जगह नहीं है उसको चिल्ला रहे, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं, नदी के कांठे पर जला रहे, यही प्रकार का दिखता है। वो कविता में ये सब बहन ने बोल दिया, वो पारुल बहन ने बोल दिया, ये दिल दहलाने वाली बात है। लेकिन और एक दिल दहलाने वाली बात दुनिया में चल रहा है, जो कोविड चल रहा है। तो कभी तुम्हें कैम गमे, तो कभी तुम्हें कैम गमे, जब वार करना कैसा गमता है आपको, कैसे वार करने का अच्छा लगता है? व्हाई द वॉर इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट, व्हाई देयर इज अ वॉर इन इजराइल और पैलेस्टाइन? इतना लोग मर रहे, बॉम्ब, वो रॉकेट फेंका जा रहा है, तो बॉम्ब फेंका जा रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बाल बुद मर रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? व्हाई दिस इजराइल और पैलेस्टाइन की स्ट्रगल में आज अमेरिका इसमें क्यों अपना नाक लेकर के इंटरेस्ट, हर बात में इंटरेस्ट लेता है, इसको लेके वो बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं? उल्टा वो लोग इजराइल को पैसा फाइनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल जाना मत करो। ये नेतान्याहू हुई, उनका नाम क्या है, वो नेतान्याहू ना, नेतान्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, वो अपने हारने के बाद पावर में किसी तरह रहने के लिए, किसी तरह एक कोलिजन मिनिस्ट्री करने के लिए, डिफरेंट ग्रुप के साथ में समझौता करने के लिए, अमेरिका को पूरा बैकिंग के साथ 12 साल में रहने के बाद उन्होंने हाल करके रखा है इजराइल में, तो जो किया और जिसने पैलेस्टाइन का हाल खराब किया है, तो आज किसी भी तरह वो पावर में रहने के लिए वो एक प्रकार का नाटक नच रहे हैं, ताकि ये वार अमंग यूरोप जो है, यार अमंग यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जो है, जो ऑल द यूरोप और अमेरिकन कंट्री ऑल द टाइम दे हैव बीन सपोर्टिंग द जियोनिस्ट इजरायली फोर्सेस फ्रॉम द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजरायली स्टेट। जब ये ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इजराइल का वो जियोनिस्ट ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था, जिस तरह से 1948 में इजराइल को बनाया गया था, ये तो इजराइल का कोई स्टेट था नहीं, जहां पैलेस्टाइन के लोग रहते थे, वहां बना के रखा गया। जिस तरह से सब लोग को दुनिया में लाकर एक देश बनाया गया, फिर बाद में अरब इजराइल का एक वार किया गया, और बाद में युद्ध करते करते, और जो पैलेस्टाइन लोग जो थे, जो जगह में थे, वेस्ट बैंक हो या जेरूसलम हो, और ये जगह बढ़ाते गए, सेटलमेंट बढ़ाते गए, डेमोग्राफिक फिगर को कम करते गए, और ये करते करते बाद में कि वार हुआ 67 वार, 48 वार, 67 वार, लाखों पैलेस्टाइन लोग अपने घर से बेघर हो गए, रिफ्यूजी बन गए। आज ये यंग जनरेशन इसको खबर उनको होगा नहीं। कुछ दिन पहले ये इसको लेकर, ये पैलेस्टाइन और इजराइल को जो झगड़ा को लेकर दुनिया में इतनी क्लिनसिंग का एक प्रोग्राम का एक दाखला दिया गया, जो भारत में भी, गुजरात में इसको प्रयोग भी हुआ, और ये हर चीज को लेकर ये जो बाद में इजराइल और पैलेस्टाइन की संघर्ष को ये प्रकार वार मशीन जो है, ये वार मशीन को बढ़ाया जाता है। ये वार मशीन जो है, ये वार में रहता है। तो अभी कोविड के टाइम पे अभी आप इसको कैसे इसको प्रोत्साहन कर सकते हैं? व्हाट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेयर्स, कुछ नहीं है, वो खाली बोलेंगे, खाली अमेरिका कुछ बोल भी नहीं रहा है, बाइडेन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, खाली अपने देश में खाली बजटरी ये करके, खाली वेलफेयर स्टेट की बात करके, ट्रम्प के सामने विक्ट्री हो गया, तो ये करके वो इतना ही करने का, इंटरनेशनल लेवल में सारे जगह में वारिंग सिचुएशन खड़ा करने के लिए आज अमेरिका बड़ा हुआ है, और इसका एक्सप्रेशन आज पैलेस्टाइन में हो रहा है। रमजान का महीना, लोग मस्जिद में जाते हैं, दुनिया में सब जहां जाते हैं, तो वहां जाने के रिस्ट्रिक्शन करना, रिस्ट्रिक्शन किए और प्रोवोकेशन से प्रोवोकेट करते रहे, और पैलेस्टाइन इजराइल के साथ प्रोवोकेशन करते करते बाद में ये आके पहुंचा कि ये बाद में रॉकेट फायर वर्सेस एयरप्लेन फायर। और अभी हमारा वो बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं, ये जब तक हम ऐसे ही पाठ पढ़ाएंगे, इस बार
पूरा कभी भी पैलेस्टाइन ऊपर खड़े नहीं हो पाएंगे। वो एक बात चल रही है। इसकी बहुत लंबा इतिहास है, तो उसी लंबा इतिहास में जाऊंगा नहीं, कहने जाने से बहुत चर्चा इजराइल के आप साथ जानते भी हैं, मैं उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। खाली मैटर ऑफ कंसर्न की बात करता हूं। दुनिया के सारे जो पीस लविंग पीपल जो है, दे शुड नॉट लाइक दिस वॉर। वो वॉर बंद होना चाहिए। दिस इम्पीरियलिस्टिक डिजाइनिंग जो है, वो डिजाइनिंग जो अमेरिका का है, अमेरिकन वेस्टर्न इम्पीरियलिस्ट पावर्स, इजराइल का जो डिजाइनिंग है पैलेस्टाइन के ऊपर में, तो ये जो है बंद होना चाहिए। कौन पत्थर फेंका, वो पहले कौन पत्थर फेंका बोल करके आपने इसके ऊपर में सारे बॉम्ब डाल दोगे, ये प्रकार का आर्गुमेंट, ये प्रकार बहुत सेवेजरी आर्गुमेंट है, पुराना जमाना का आर्गुमेंट है, ये शोभा नहीं देता। और ये जो क्लास ऑफ टू सिविलाइजेशन करते हुए जिस तरह से एक प्रकार का उस इस्लामी को डेमोनाइज करना और बाकी को डिमोनाइज करना, ये जो बात चल रहा अभी भी चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज ये समझना पड़ेगा। आज का जो ये हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो क्या करना चाहते हैं, ताकि वो किसी तरह जो उनको 12 साल तक चलाए, 4 साल में दो साल में 4 बार उनका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में उन्होंने अपना पूरा बार नहीं मिनिस्ट्री बना नहीं पाए। उनके सामने एक लुबिक जो है वो दूसरे जो उनको मिनिस्ट्री बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये किसी भी तरह अमेरिका का प्रोटेस्टेड आदमी है बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनको किसी भी तरह वो मिनिस्ट्री बना पाए और भी ये पैट्रियोटिज्म खड़ा करके, एक जिंगोइज्म खड़ा करके, न्यू जियोनिज्म खड़ा करके, नया जो जियोनिज्म जो यंग जनरेशन में जो आज इजराइल में आ रहा है, इसको खड़ा करके वो फिर से मिनिस्ट्री में आने के चक्कर जा रहा है। ये बात को सबको समझना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इलेक्शन ओरिएंटेड अटैक ऑफ दी फ्रॉम इजराइल ऑन पैलेस्टाइन्स। पैलेस्टाइन्स भी आज एनफ इज एनफ, वो बात भी आ गया है। वहां भी इतने वर्षों साल से 70 इयर्स नहीं, 70 से ज्यादा 1926 से वो घर से बेघर कर दिया गया है। वो जो चीज है, जो फीलिंग जो है, आप किसी से अपने मूल्य से निकल जाना, आपको निकाल देना, अपने घर भीटा माटी से निकल के रिफ्यूजी बन जाना, ये फीलिंग जिनको हुआ है वही बोल पाएंगे। तो उसी का जो उन्हीं के अंदर भी एक न्यू जनरेशन आ रहे हैं, वहां भी एक प्रकार का एनफ स्लोगन भी आ रहा है। तो ये परिस्थिति खड़ी हो रही है। तो वर्ल्ड आज होल अमेरिका के अंदर बड़े बड़े शहर में, न्यूयॉर्क, शिकागो, बल्टीमोर, सब जगह में आज वहां बड़े पैमाने पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। तो उन्होंने इजराइल के अंदर टेल अवीव में प्रोफेसर लोग, वहां के जो बाकी लेफ्ट प्रोग्रेसिव पार्टीज वगैरह हैं, वो भी इजरायली अटैक को कंडेम कर रहे हैं। जो कंडेम नहीं करता है ठीक से, वो अमेरिका ही नहीं करता है। अमेरिका को तो पसंद है, जो जितना करेगा वो इतना पसंद है। मुझे लगता है कि इतना ही में लगता है कि अमेरिका का जो सर ये पैलेस्टाइन्स और इजराइल के बारे में कहूं, ये बहुत दुख की बात है। बालक लोग मर रहे हैं और आप लोग फोटो देखेंगे तो कोई ना कोई आपको दिल दहला जाएगा। लेकिन ये वॉर पॉलिसी जो चल रहा है, ये बाइडेन आने के बाद भी दुनिया में शांति होगा, वो कोई चांस दिख नहीं रहा है। और अशांति का अगर शांति होता तो ये क्या हमारा ये देश में क्वाड का मिलिट्री एक्सरसाइज होता, अगर शांति होता तो अमेरिका का जो मिलिट्री जो 7th फ्लीट है हमारे इंडियन टेरिटरी में आ जाता और हमारा सरकार चुप रहता। तो ये शांति करना नहीं चाहेंगे। आज म्यांमार में चल रहा है, उसको भी कोई दबा नहीं पा रहे हैं। तो आज नॉर्थ कोरिया को लेकर भी एक टेंशन खड़ा करने की कोशिश करें। अब मेरा बात है भाई, अमेरिका आप अपने आंगन में काम करो ना, तो आपको अपना क्या करना क्या है, आपको क्या खुद करने का है। साउथ अमेरिका में करप्शन को फाइट करना है, आपको क्या करना है साउथ अमेरिका में। यू लुक, आप अपना देश का जो प्रॉब्लम है आप इसको समाधान करो। आप यहां क्या करोगे आप। तो ये जो अमेरिका का जो वार पॉलिसी जो है, वार करना और चाइना को साथ, चाइना को एक करने, चाइना को आइसोलेट करने के लिए सब कुछ घेर के रखना, इंडिया को साथ में लेना, और यहां तक कि भी कोरोना को फाइट करना भी इसी कारण भी ठीक से नहीं हो गया। चाइना को आइसोलेट करने के नाम पर भी नहीं हो पाया। आज अमेरिका अपना ही लीडिंग नेशन है, फर्स्ट नेशन है टू फेस कोरोना। ये दिखाने के लिए जो इनकी जो एम्बिशन जो रहा, वो एम्बिशन सबके लिए भारी पड़ा, इंडिया को भी भारी पड़ा। रॉ मेटेरियल को भी नहीं मिला, इंडिया का गलती हुआ, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो रॉ मेटेरियल भी दिया नहीं। ऐसे सिचुएशंस में आज ये जो मुखिया, सारा दुनिया का मुखियागिरी करने का अमेरिका निकला हुआ है, उसके कारण आज वार भी हो रहा है। कोरोना से हम मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं, हम इनके डिपेंडेंट भी हो रहे हैं और मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे एक सिचुएशन खड़ी हुई है। इस सिचुएशन में नागरिक के, सिटीजन्स के हिसाब से हमारा फर्ज बनता है, ताकि हम एक एंटी वॉर का बात, हमारा एंटी वॉर जो है पैलेस्टाइन में जो हो रहा है,
हम जैसे ऑल द टाइम पे इसको विरोध किए हुए हैं। हम अहमदाबाद में भी काफी टाइम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हुए हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हुए। तब चुनी भाई थे, तब भाई पाठक साहिब भी थे। मुझे लगता है इस सब लोगों ने हम सरदार बाग में मिलकर हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए, हम मीटिंग भी किए थे, पैलेस्टाइन के बारे में मीटिंग भी किए थे। पाठक साहब ने बहुत सुंदर भाषण दिया था, ये हमको याद है सब चीजों का लेकर। तो आज उसी स्पिरिट को रख के हम बात कर रहे हैं कि हम डेफिनेटली वी आर फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। हम इतनी क्लिनसिंग की बात नहीं है, हम ये जो पैलेस्टाइन को इतनी क्लिनसिंग करने की जो हो रहा है वो बात नहीं है। और अभी जो ये जो घटना जो मस्जिद को लेकर हो रहा है, वो मस्जिद का जो जिस तरह से हो रहा है, ये प्रकार का एक जो भाईचारा वाली बात है, वो भाईचारा खड़ा हो सकता है या दुश्मनी खड़ा हो सकता है। भाईचारा की जगह में दुश्मनी खड़ा हुआ। तो ये सब को लेकर आज मैं इतना ही बात करता हूँ। एक जगह मैं कोरोना की बात किया, जैसे पैलेस्टाइन की बात किया, और हमारा जो सब वाहिनी जो गंगा जो है आत्मा के परमात्मा के साथ मिल जाएगा, वो बात भी है। लेकिन अभी भी मैं बात करने बाद में मेरे नजर के सामने, आंख के सामने और भी कितना डेड बॉडी गिरेंगे और कितना लोग मरेंगे, ये दहशत के साथ मैं अपने बात को पूरा करता हूँ। नमस्कार।